Hello subscribers and my dear students and followers. Today I am explaining genetic Mendelian disorders. These are heritable. These disorders are heritable, means these disorders always transfer one generation to generation because of the person who are suffering from the genetic Mendelian disorders are not sterile. They can produce their offspring, but the cause of these genetic disorders due to inactivation of gene result in absence of particular enzyme in metabolic process. So a lot of examples of genetic Mendelian disorders are, we will explain. Okay, so I am explaining here now. PKU, this is known as phenylketonuria. Albinism, AKU, it is known as alkaptonuria. Hemophilia, thalassemia, sickle cell anemia and color blindness. Okay, so firstly we will understand here PKU. This is known as phenylketonuria. Phenylketonuria. See, in our metabolic process, phenylamine amino acid is converted into tyrosine amino acid. So what is happening here? Phenylamine is converted into tyrosine in presence of phenylamine hydroxylase enzyme. Phenylamine hydroxylase enzyme. Now tyrosine again convert into melanin in presence of tyrosinase enzyme. Okay, so this is a very important metabolic process which is happening in all human being, in a healthy person. So now the topic is phenylketonuria. What is phenylketonuria? I already explained to all of you that in metabolic process gene become inactivate, that's why enzyme not release properly. So what the effect here? The gene which is responsible for controlling phenylamine hydroxylase enzyme become inactivate. It result that phenylamine, because of this enzyme, phenylamine hydroxylase is not released here, is converted into phenyl pyruvic acid. Phenyl pyruvic acid. And as the phenyl pyruvic acid concentration increases, that person has to suffer mental retardation. So this situation is called phenylketonuria. अब एक बार इसको आसानी से समझ लें कि एक नॉर्मल प्रोसेस है, एक हेल्दी पर्सन है जिसमें फेनाइलमीन नाम का अमीनो एसिड फेनाइलमीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में टायरोसिन में कन्वर्ट होता है. टायरोसिन जो है वो टायरोसिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में मेलानिन में कन्वर्ट होता है. तो जिसको फिनाइल पीकेयू बीमारी होती है उसमें फेनाइलमीन नाम का अमीनो एसिड फेनाइलमीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के रिलीज ना होने की वजह से फिनाइल पायरुविक एसिड में बदल जाता है. और जैसे ही ब्लड में फिनाइल पायरुविक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है उससे मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है. इसी बीमारी को हम पीकेयू कहते हैं. ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड. नाउ सेकंड, एल्बिनिज्म.
Now albinism. In albinism, now this is the second step. You are seeing here that in the first step, tyrosine is converted into melanin. So those person who are suffering from albinism, the enzyme tyrosinase does not release due to inactivation of gene. तो इस बीमारी में जीन जो कि टायरोसिनेज एंजाइम को रिलीज करता है वो इनएक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से टायरोसिन मेलानिन में नहीं बदलता और उसकी वजह से एल्बिनिज्म नाम की बीमारी हो जाती है। एल्बिनिज्म बीमारी में किसी भी तरीके का कोई कलर नहीं बनता, उनके बाल जो होते हैं वो ब्लैक नहीं होते, उनकी आंखों में जो आइरिस जो होती है वो कलरलेस होती है, उनकी स्किन पर कोई कलर नहीं होता है। दे आर यूजली नोन एज सनफ्लावर, सूरजमुखी, एल्बिनो, उनकी बॉडी में कोई कलर पिगमेंट नहीं होता है। इट इज इनक्योरेबल, इसको हम सुधार नहीं सकते। तो इसका कारण क्या है कि उस व्यक्ति के अंदर फिनाइलामीन से फेनाइलामीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होने की वजह से टायरोसिन तो बन जाता है, लेकिन टायरोसिन से मेलानिन नहीं बनता, क्योंकि टायरोसिनेज एंजाइम जो सेकंड स्टेप है वो फर्दर आगे नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मेलानिन नहीं बनता। हम जानते हैं हमारी स्किन में जो कलर है, पिगमेंटेशन है, वो मेलानिन नाम के पिगमेंट की वजह से होता है। सो इन एल्बिनिज्म व्हाट इज हैपनिंग, टायरोसिन is not converted, tyrosin is not converted into melanin pigment due to absence of tyrosinase एंजाइम। टायरोसिनेज एंजाइम के ना निकलने की वजह से मेलानिन नहीं बनता। तो टायरोसिनेज एंजाइम क्यों रिलीज नहीं हुआ, क्योंकि इसको कंट्रोल करने वाला जीन यहां पर इनएक्टिव हो जाता है। तो अभी हमने दो डिसीज देख ली, पीकेयू देख ली, एल्बिनिज्म देख ली, ठीक। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट बीमारी देखेंगे हम एकेयू। तो अभी हम देखेंगे एल्केप्टेन्यूरिया, एकेयू। देखिए हमारी जो यूरिया फॉर्मेशन प्रोसेस होती है क्रेब साइकिल में, उसमें होमोजेनेटिसिक एसिड बनता है। होमोजेनेटिसिक एसिड एक नॉर्मल व्यक्ति में CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ होमोजेनेटिसिक एसिड को कंट्रोल करने वाले जीन हैं हेल्दी पर्सन में। लेकिन इन एल्केप्टेन्यूरिया पर्सन होमोजेनेटिसिक एसिड कंट्रोलिंग जीन बिकम एब्सेंट। इट रिजल्ट दैट होमोजेनेटिसिक एसिड डायरेक्टली come into the urine and urine turn black with the reaction of oxygen. Okay, so now see, this is alkaptonuria. During urea formation of homogenetic acid oxidized in Krebs cycle in CO2 and water in normal person, ठीक। But in case of alkaptonuria person, homogenetic acid controlling gene become inactive. It result homogenetic acid released by urine and urine turn black in color due to reaction of oxygen. तो देखें ये जो है एल्केप्टेन्यूरिया एक ऐसी डिसीज है जिसका इलाज कुछ नहीं है, लेकिन कोई परेशानी भी नहीं है, बस होमोजेनेटिक एसिड यूरिन में आ जाता है, जिसकी वजह से यूरिन ऑक्सीजन के साथ संपर्क करके यूरिन ब्लैक कलर में बदल जाता है। ओके, नाउ एल्केप्टेन्यूरिया के बाद हम देखें हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इज नोन एज रॉयल डिजीज विच इज फर्स्ट रिपोर्टेड इन Queen Victoria in England family. That's why it is called royal disease. Okay. It occurs, इसका कारण क्या है देखें, छोटी सी माइनर इंजरी होगी, तो छोटी सी माइनर इंजरी में भी जो हीमोफीलिया है उसके अंदर ब्लड का क्लॉट नहीं बनता। देखें हमारे यहाँ ब्लड क्लॉट बनाने के लिए 12 फैक्टर होते हैं, पहले फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर, एट्थ, इसी तरीके से 12 फैक्टर एक एक करके होते हैं। इसे पूरा होने में करीब 3 मिनट का समय लगता है। लेकिन हीमोफिलिक पर्सन जो होते हैं उसमें 1 से लेके 7 तक के फैक्टर तो सारे होते हैं, लेकिन 8th फैक्टर जो होता है उसको कंट्रोल करने वाला जीन इनएक्टिव हो जाता है, जिसे कहते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, जिससे आगे के जो है 9, 10, 11, 12 फैक्टर प्रोसीड नहीं हो पाते और उस व्यक्ति का ब्लड क्लॉट नहीं बनता। तो देखें रॉयल डिजीज इट अकर्स ड्यू टू ट्रांसमिशन ऑफ डिफेक्टेड एलीज प्रोड्यूस डिफेक्टेड प्रोटीन विच कॉज द डिले क्लॉटिंग। ड्यूरिंग दिस 8th फैक्टर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बिकम एब्सेंट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ जीन अमंग द 12 फैक्टर। तो 12 फैक्टर जो होते हैं उसमें से 8th फैक्टर एब्सेंट हो जाता है। इट रिजल्ट
इट रिजल्ट द डिले ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड डज नॉट क्लॉट। तो इस तरीके से ये कारण होता है हीमोफीलिया का। हीमोफीलिया को अगर हम देखें तो यहाँ XXHH, यहाँ दोनों, ये फीमेल है, इसमें दोनों तरफ HH जो हम शो कर रहे हैं, तो ये हीमोफिलिक गर्ल है या वुमेन है जो 100% हीमोफिलिक है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ एक लड़का है, एक XH और Y है, तो यहाँ पर ये कैरियर की तरह है। तो अभी हमने यहाँ पर हीमोफीलिया का कॉज देखा। हीमोफीलिया में माइनर इंजरी के बाद भी ब्लड का क्लॉट नहीं बनता, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग के 12 फैक्टर में से 8 फैक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन एब्सेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से 9, 10, 11, 12 वाले फैक्टर आगे बढ़ नहीं पाते और ब्लड का क्लॉट नहीं बनता। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट थैलेसीमिया। अभी हम देखेंगे थैलेसीमिया। देखें थैलेसीमिया, दिस इज ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिसीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट इनटू ऑफस्प्रिंग एंड इट्स कॉज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, यानी इसमें एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है। एंड कॉज एनीमिया, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनने की वजह से वो 120 दिन से पहले आरबीसी नहीं चल पाती है, जिसकी वजह से एनीमिया जाता है। तो थैलेसीमिया 2 तरीके का होता है। इट इज ऑफ 2 टाइप, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। देखें अल्फा थैलेसीमिया में इट इज क्लोजली लिंक्ड विद जीन HbA1 एंड HbA2, हीमोग्लोबिन A1, हीमोग्लोबिन HbA2 ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। तो जो अल्फा थैलेसीमिया है वो क्रोमोसोमल नंबर 16 का डिफेक्टेड हो जाने की वजह से होता है। और बीटा थैलेसीमिया इट इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल जीन HbB ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। तो बीटा थैलेसीमिया जो है वो डिपेंड करता है क्रोमोसोम नंबर 11 पर। तो ये ध्यान रखें, नीट में पूछते हैं कि बीटा थैलेसीमिया कौन से क्रोमोसोम नंबर से कंसर्न है, तो हम कहेंगे 11, और अल्फा थैलेसीमिया क्रोमोसोम नंबर 16 पर। ठीक, अब हम देखते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है कि सिकल का मतलब होता है, सिकल मीन्स होता है श्रिंक, यानी दराती शेप। सेल एनीमिया, नॉर्मल आरबीसी जो होती है ह्यूमन की वो राउंड होती है और 120 दिन उसकी लाइफ साइकिल होती है और उसके अंदर हीमोग्लोबिन भरा हुआ होता है, वो राउंड शेप में होती है। तो अगर हम देखें हीमोग्लोबिन की पेप्टाइड चेन अगर हम यहाँ देखते हैं तो हीमोग्लोबिन की जो पेप्टाइड चेन है, यहाँ HbA पेप्टाइड चेन दिखाई है, इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हर इस चेन में हर एक जगह पर एक अमीनो एसिड्स होते हैं। तो देखें 1 पर यहाँ पर VAL का मतलब है वेलिन, सेकंड नंबर पर HIS का मतलब है हिस्टामिन, थर्ड पर ल्यूसिन LEU से इंडिकेट किया गया है, 4 पर THR यानी थ्रोम्बिन से इंडिकेट किया गया है, और 5 PRO यानी प्रोथ्रोम्बिन पर, और 6 पोजीशन पर यहाँ पर ग्लूटामिक है और 7 पर ग्लूटामिक है। तो ये है एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन की चेन जिसकी वजह से आरबीसी यहाँ पर राउंड शेप है। लेकिन जिसे सिकल सेल एनीमिया हो जाता है उसकी हीमोग्लोबिन की चेन में डिफेक्ट आ जाता है। वो देखें यहाँ क्या है, यहाँ पर आरबीसी की शेप जो है सिकल शेप्ड हो गई, तो सरफेस एरिया कम हो गया, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई, और ये वाली आरबीसी ब्लड सर्कुलेशन में जो है सिकल सेल होने की वजह से तेजी से जब फ्लो होती हैं तो ब्लड वेसल्स के अंदर ये टूट जाती हैं। 120 दिन से पहले ब्लड आरबीसी टूट जाने की वजह से एनीमिया हो जाता है, और वैसे भी सर्विस एरिया कम हो जाने की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। तो इसका डिफेक्ट यहाँ समझें कि ये हीमोग्लोबिन एस पेप्टाइड चेन दिखाई है, सेम प्रोसेस है 1, 2, 3, 4, 5। देखें 1 पर वेलिन इसकी तरफ, नंबर 2 पर हिस्टामिन इसकी तरफ, 3 पर ल्यूसिन इसकी तरह, 4 पर थ्रोम्बिन भी इसी की तरह है, 5 पर प्रोथ्रोम्बिन भी इसी की तरह है। लेकिन डिफेक्ट क्या हुआ कि 6 पोजीशन पर यहाँ पर नॉर्मल पर्सन में ग्लूटामिक है, तो यहाँ 6 पोजीशन पर वेलिन आ जाता है, जिसकी वजह से आरबीसी राउंड ना होके श्रिंक हो जाती है। इसी को हम जो है सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ये डिफेक्ट अगर एक बार हो गया तो इसे हम कभी भी किसी मेडिसिन से सही नहीं कर सकते। तो जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं इन सबका मेडिकल में ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे एल्केप्टेन्यूरिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया और सिकल सेल थैलेसीमिया, इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ओके, सो नाउ हमने यहाँ पर एक सिंपल लैंग्वेज में समझा सिकल सेल एनीमिया होने का कारण क्या है कि जो व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया होता है उसकी हीमोग्लोबिन की पेप्टाइड चेन में 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक के प्लेस पर यहाँ पर वेलिन आ जाता है, जिसकी वजह से आरबीसी श्रिंक हो जाती हैं और सिकल सेल एनीमिया हो जाता है।
Okay, I think all of you have understood all the genetic disorders. I am very thankful to all of you that you have seen my video and try to understand the concept which I easily explain. Thank you so much. Thank you.